زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی مل کے بواز بلند صلوات پڑھی۔ یہ پیچھے والے حضرات مہربانی فرمائیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، میں جناب کے چہروں کی زیارت بھی کرتا رہوں، مہربانی فرمائیں جی، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ بڑے بہترین میزبان ہیں، آگے تشریف لے یہ آپ بھی جناب، یہ کیمرے کے پیچھے والے مومنین آگے تشریف لے آئیں جی، بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں جی، آ جائیں جوان آگے تشریف لے آئیں جی، بڑی مہربانی آپ کی، مرضی ہے جناب آپ کی، آپ ہلتے جلتے بھی نہیں ہیں ذاکر کے کہنے پہ۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مل کے بواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ آپ ہی آگے تشریف سامنے تشریف لے آئیں، میں جناب کے چہروں کی زیارت کرتا رہوں، ایک مجلس کا ماحول ہوتا ہے جی، بڑا خوبصورت آپ سنتے ہیں، لیکن اگر اس ماحول کو بنایا جائے، برقرار رکھا جائے، 2 قدم آگے آ جائیں جی، مہربانی بھائی جانا، آپ کا چہرہ وہاں اتنا خوبصورت ہے، آگے آ کے کتنا لگے گا، بڑی مہربانی، درود پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کا، بانیان عشرہ محرم الحرام کا، یہ خرچ اخراجات، یہ لنگر نیاز، یہ صفِ عزا بچھانا اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک اس ذکر کا صدقہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرا مالک جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ میرا مالک کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے تو ذکر کا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک کوئی بیمار ہے تو اس ذکر کا صدقہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاکستان بلکہ پوری دنیا کی جان اس کرونا وائرس سے چھڑوا۔ میرا مالک ہر ایک جو اس بیماری میں اس مرض میں مبتلا ہے صدقہ سید الساجدین کی بیماری کا اسے شفا یاب فرما۔ جس بندے کے دل میں جتنی حسرت، جتنی ضرورت، جتنی تڑپ ہے بندہ اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ، حجت دورہ، حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا، یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں، اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ جی بڑی مہربانی، آپ بہت خوب، یہ ذکر بہت خوب، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ میں 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرتا ہوں، بالکل ایک نیا سا منفرد سا موضوع پڑھنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ ہم احترام کے قابل کلام کرتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، جس بندے کو سمجھ آگئی بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ ہم احترام کے
काबिल कलाम करते हैं। जितने मेरी मजलिस में शिया बैठे हैं ना जी, मैं बात उनकी कर रहा हूँ, बात अपनी कर रहा हूँ। जो माँ की झोली से शिया पैदा हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं। जिस बंदे को अपने अज़ादार होने पे माने जी, बड़ी मेहरबानी। हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं। मैं चौथा मिसरा अपने अकीदे के मुताबिक पढ़ने लगा हूँ। जनाब का अकीदा मेरे साथ मैच कर जाए, जनाब का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल जाए तो फिर बोल में बुखल नहीं करना, तायद के लिए हाथ जरूर उठाना है। हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं। मेरा अकीदा क्या है? जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं और बतूल वो गुनहगार बख्श डालेगी। ना 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 ना, जिस बंदे का यूं दामन फैला हुआ है और बंदा कहता है मैं मजलिस हुसैन में आया हूँ, यहाँ से खाली दामन जा ही नहीं सकता। हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं। मेरे चौथे मिसरे से पता लग जाएगा मैं आज पढ़ने क्या लगा हूँ। जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं और बतूल वो गुनहगार बख्श डालेगी जो जुल्जनाह को झुककर सलाम करते हैं। जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी बड़ी मेहरबानी, मैं लाख दफा पढ़ूं जी। हम एहतराम के काबिल कलाम करते हैं, जिम्मे जो उसने लगाया वो काम करते हैं, बतूल वो गुनहगार बख्श डालेगी जो जुल्जनाह को झुक कर सलाम करते हैं। अच्छा, ये को 2-2.5 साल पहले की बात है। मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ। मैंने, जाहिर बात है, इमाम हुसैन बादशाह ही ऐसा है जो कमियों को सरदार बना देता है। जो कुछ नहीं होता हुसैन उसे बहुत कुछ बना देता है। मुझसे घर वालों ने हुक्म किया, सब ने फरमाइश की कि इस बच्चे का नाम तुमने रखना है। सजाद साहब, आपकी मार्फत की कसम, मैंने उस बच्चे का नाम रखा मुर्तजिज़। जी बड़ी मेहरबानी, तायद के शुक्रिया। जो बंदे बोल पड़े उनके क्या कहने। मुर्तजिज़ है। अगर कोई बंदा पहली दफ़ा मजलिस में आया, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए बताता हूँ, मुर्तजिज़ है हुसैन के घोड़े का नाम, जिसे आप जुल्जना कहते हैं। वो भी एक लंबी चौड़ी वजह है, मैं कोशिश करूँगा आगे बयान करूँ। मैंने उसका नाम रखा मुर्तजिज़। यूँ मैं गली से निकला ना, अगले दिन 2-3 दिन बाद गालिबन एक मजलिस के लिए जा रहा था। सामने वाली गली से, बिल्कुल सामने वाली गली है ना जी, जो हमारे घर के सामने वाली गली, उसके शुरू में सबसे पहले वाली बिल्डिंग ही मस्जिद की बिल्डिंग है। मैं यूँ निकला अपने गली से मजलिस के लिए अपनी गाड़ी में। जैसे ही मेरी गाड़ी मुड़ी, देखना मेरी तरफ है जी, बात बड़े मज़ेदार सुनाने लगा हूँ। सामने से मौलवी साहब आए उस मस्जिद के पेश नमाज। चूँकि मोहल्लेदारी है, रोज़ हमने उठना बैठना है, और माशाल्लाह हम ये बताना चाहते हैं कि शिया सुन्नी मुसलमानों में कोई तफरका है ही नहीं। ये मजलिस में भी साथ हैं, ये मिलाद में भी साथ हैं, ये जुलूस में भी साथ हैं। अगर ये मातमी पूरा दिन कमीज़ उतार के मातम करते हैं इस गर्मी में, तो इन्हें ठंडा शरबत पिलाने वाली कौम का नाम है अहले सुन्नत। ऐसे ही है जनाब, हम हर जगह एक साथ हैं हजूर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मोहल्लेदारी है, एक मसल की मोहब्बत भी है अहले सुन्नत भाइयों से। मैं जैसे ही करीब आए, मैंने एहतरामन गाड़ी रुकवाई, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने सलाम पेश किया, उन्होंने जवाब दिया बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में। उन्होंने कहा, शबीउल हसन काज़मी, आपसे अक्सर सवाल जवाब होते हैं, बातचीत होती है। हम मातम पे एतराज़ करते थे, आपने वो भी बताया। हम रोज़ा देर से खोलने पे एतराज़ करते थे, आपने वो भी समझाया। हम 2 नमाजें मिला के पढ़ने की बात करते थे, आपने वो भी समझाया। ये छोटे मोटे फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात तो हमेशा से चलते आए हैं और शायद इनका हल भी कोई नहीं। मौलवी साहब ये फरमा रहे थे मुझसे, समझ आ रही है बात जनाब को? फरमा रहे थे कि छोटे मोटे मसले की इख्तिलाफ़ात, इनका हल तो है कोई नहीं, ये सालों से चले आ रहे हैं, पता नहीं इनका कहाँ एंड होना है, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या नहीं होना। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए। फरमाने लगे, आपके भाई के यहाँ बेटा हुआ
आपने उसका नाम रखा मुर्तजिज़। मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है, मैंने अपने भाई के बेटे का नाम, अपने भतीजे का नाम रखा मुर्तजिज़। हाय, आप अजमत का जुमला पढ़ने लगा हूँ जिसे समझ आ गया। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने अपने भतीजे का नाम रखा मुर्तजिज़। उन्होंने फरमाया सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये बात दिल में बैठती नहीं, ये इस बात को जहन कबूल नहीं करता। इंसान के बेटे का नाम हैवान के नाम पे रख दिया। हाँ, जिस बंदे को समझ आई है, जवाब मैंने देना था, परेशान आप हो गए हैं जनाब। क्या हो गया? फरमाते हैं जी इंसान के बेटे का नाम हैवान के नाम पे रख दिया। जब कहा ना हैवान के नाम पे, सजाद साहब मेरे अंदर के शायर की तबीयत खराब हो गई, मेरा कलम मुतहर्रिक हुआ। मैंने उनकी जानिब देखा, मैंने देख के कहा तन्हा है मगर दश्त में बेजान नहीं है। हाँ हाँ, अब जिसका हाथ उठा मैं उसका मकरूज। 8 दिन में 7 नौकरियों में आज लुत्फ आया जनाब, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा तन्हा है मगर दश्त में बेजान नहीं है, काम आए ना जो दी के वो इंसान नहीं है। जिस बंदे को समझ आई बड़ी मेहरबानी, जिसका हाथ बुलंद हुआ उसके हाथ के क्या कहने, मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा तन्हा है मगर दश्त में बेजान नहीं है। उन्होंने कहा बात दिल में बैठती नहीं, जहन कबूल नहीं करता। इंसान के बच्चे का नाम हैवान के नाम पे, इंसान के बेटे का नाम हैवान के नाम पे। मैंने कहा आपकी गलत फहमी है, ये मैं आपकी गलत फहमी दूर करता हूँ। मैंने कहा तन्हा है मगर दश्त में बेजान नहीं है, काम आए ना जो दी के वो इंसान नहीं है। जब से दरे शब्बीर पे सर इसने झुकाया, बाहर से है अंदर से ये हैवान नहीं है। आहा, अज़मत है ज़ुल्म। हाथ उठा के हर बंदा हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी जी, आपके क्या कहने हैं इस जिक्र के, क्या कहने? बहुत शुक्रिया जी। बाहर से है अंदर से ये हैवान नहीं है। अच्छा जी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे मुल्क में सिचुएशन बड़ी अजीब है जी, कंडीशन बड़ी अजीब है। हम पूरा साल हुसैन का रहवार अपने घर रखते हैं, ऐसे ही है जी। ये जो खुशकिस्मत लोग हैं, शायद यहाँ भी कोई तशरीफ़ फरमा हो, जो खुशकिस्मत लोग मालिक की सवारी को पूरा साल पालते हैं, उसके खर्च खराजात बर्दाश्त करते हैं, उसकी ग़िज़ा का एहतमाम करते हैं, उसे रोज़ाना सैर पे ले जाते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ सजाद साहब, उसे अपने पास हम रखते हैं, मोहल्ले वालों को कोई एतराज़ नहीं, ठीक है जी। हमारे घर के साथ शायद हुजरा हो उसका, वहाँ से गुजर के हमारे घर आते हैं, बंदू को एतराज़ नहीं। जिस घर में वो होता है वहाँ ये मेहमान होते हैं, इन्हें कोई एतराज़ नहीं। हम सैर पे ले जाते हैं, गली में, मोहल्ले में, चौक में घुमाते हैं, इन बंदू को कोई एतराज़ नहीं। इनकी दुकानों से उसकी ग़िज़ा ले जाते हैं, इन बंदू को फिर भी सजाद साहब कोई एतराज़ नहीं। लेकिन समझ नहीं आती, जैसे ही 10 मुहर्रम का दिन आता है, जैसे ही 20 सफ़र आती है, हम उसे गुस्ल देके नई चादर ज़ेब तन करके जैसे ही आके ये कहते हैं ये हुसैन का घोड़ा है, ये हुसैन का मुर्तजिज़ है, ये हुसैन का जुलजना है, ये हुसैन का रहवार है, यही बंदे फौरन सड़क पे निकल आते हैं, नहीं जी हुसैन का घोड़ा यहाँ ना आए, हुसैन का घोड़ा यहाँ ना आए, हुसैन का घोड़ा यहाँ ना आए। जो बंदा सज्जाद साहब इस कैफियत वाले, उस बंदे को शबीर हसन काज़मी पैगाम दे के कह रहे, जो कहते हैं ना हुसैन का घोड़ा यहाँ ना आए, हुसैन का घोड़ा यहाँ ना आए। मैं उनसे पूछने लगा हूँ हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा? ना 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 ना, मैं सवाल करने लगा हूँ, उसका जवाब चाहिए। मैंने कहा हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा, हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा। चोर किसी गली से चोरी करके निकले ना, चोर किसी गली से चोरी करके निकले और उस गली की लुक्कर पे, उस गली के कोने पे, उस गली के कॉर्नर पे खाली पुलिस की गाड़ी खड़ी हो ना, पुलिस वाला ना हो, तो बंदे फिर भी चोर रास्ता तब्दील कर लेते हैं। ये ना हो कहीं पुलिस आ जाए, ये ना हो पुलिस की गाड़ी मुझे अपनी गाड़ी में बिठा ले, चोर फौरन राय फरार इख्तियार करता है। मैंने कहा हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा, हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा। हुसैन इब्ने अली का ये जाविया होगा, हाली मुर्तजिज़ है, 10 मुहर्रम का दिन है, उस पे हाली तलवार लटक रही है, उस पे कोई बैठा हुआ नहीं, कोई बैठा हुआ नहीं। हयात और मौत पे कुदरत का सिलसिला होगा, हुसैन इब्ने अली का ये जाविया होगा और उसके हाली ही घोड़े से डर रहे हो तुम, वो इस पे बैठ के खुद आ गया तो क्या होगा? अज़मत है। एहतराम आज़ाम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी बिस्मिल्लाह। कोई तबीयत लगी जनाब की? लुत्फ आ रहा है आपको? अगर आपको लुत्फ आ रहा है तो मैं हुसैन के इसी रहवार का खुतबा तिलावत करूं जी? जी बड़ी मेहरबानी। जिन बंदों ने बिस्मिल्लाह की उनका शुक्रिया, जिन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं की उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बिस्मिल्लाह को उर्दू में या अली कहते हैं। अब सारे एक दफ़ा कहें ना जी बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह। हुसैन का रहवार कह रहा है हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां। एख्तियार हुसैन साहब, हुसैन का रहवार का खुतबा। हुसैन का मुर्तजिज़ कह रहा है हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां, मुझको खुदा ने बख्श दी है मुनफरद सी शान। जिस बंदे को समझ आई है, मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता शुरू करके कोशिश करने लगा हूँ अपना हर्ज वहाँ ले जाऊँ जहाँ सुनने की तबीयत लगाए बैठे हैं। हुसैन का रहवार कह रहा है हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां है, हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां, मुझको खुदा ने बख्श दी है मुनफरद सी शान। एक लफ्ज़ है गर्दाब। गर्दाब का क्या मतलब है? घेरा, चारों तरफ होना। हुसैन का रहवार कह रहा है हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां, मुझको खुदा ने बख्श दी है मुनफरद सी शान, गर्दाबे अश्किया में भी जुर्रत की हूँ पहचान। आहा, बड़ी मेहरबानी। ने उर्दू सुननी आती है जनाब? क्या बात है आपकी। शेर सुनने वालों की क्या बात है। कैमरे के पीछे वाले भी बोल पड़े, मैं जनाब के हक में दुआ करता जाऊंगा। हुसैन का रहवार कहते हैं हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां, मुझको खुदा ने बख्श दी है मुनफरद सी शान, गर्दाबे अश्किया में भी जुर्रत की हूँ पहचान, गर्दाबे अश्किया में भी जुर्रत की हूँ पहचान। मुर्तजिज़ कहते किसी हैं? मुर्तजिज़ अपनी शान जुबान से बयान कर रहे हैं मेरी शान क्या है। हुसैन का रहवार कहता है गर्दाबे अश्किया में मैं जुर्रत की हूँ पहचान, मैं मुर्तजिज़ हूँ और दलेरी का हूँ जहां। आहा, क्या कहने। जिंदाबाद। हुसैन के रहवार की अजमत पे बोलने वालों की क्या बात है, आपके उठे हुए हाथ की क्या बात है। हुसैन का रहवार कहते हैं हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां है, हर वक्त हुसैन की मिदहत मेरा बयां, मुझको खुदा ने बख्श दी है मुनफरद सी शान, गर्दाबे अश्किया में भी जुर्रत की हूँ पहचान, गर्दाबे अश्किया में भी जुर्रत की हूँ पहचान, मैं मुर्तजिज़ हूँ और दलेरी का हूँ जहां, मैं मुर्तजिज़ हूँ और दलेरी का हूँ जहां। मैंने आलम तसव्वुर में दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा हुसैन का रहवार अपनी कोई ऐसी इज्जत बता, अपनी कोई ऐसी अजमत बता, अपनी कोई ऐसी शान बता जो शबीउल हसन काज़मी सुन के खुश हो जाए, लखों डार वालों को सुनाए वो भी सुन के खुश हो जाए। हुसैन का रहवार कहते हैं शबीउल हसन काज़मी अपने शहपर मुवद्दत को तैयार कर, मेरी इज्जत और अज़मत सुन और लखों डार वालों को सुना। हुसैन का रहवार कहते हैं गर्दाबे अश्किया में मैं जुर्रत का हूँ जहां, मैं मुर्तजिज़ हूँ और दलेरी का हूँ जहां। हुसैन का रहवार कहते हैं मेरी सदा को अर्श व फर्श ने भी सुन लिया। ना 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 ना, आपने मेहनत जाया कर दी माजरत के साथ। जिस बंदे को उर्दू सुननी आती है, जिस बंदे को शेर समझना आता है, शबीउल हसन काज़मी अपनी फजीलत पढ़े तो कोई दाद नहीं, अगर हुसैन के घोड़े की अजमत पढ़े तो फिर बोलने में भूल नहीं करना। हुसैन का रहवार कहता है मेरी सदा को अर्श व फर्श ने भी सुन लिया, मुझको खुदा ने सारे जहानों से चुन लिया। ओहो जी, बड़ी मेहरबानी। हाथ उठा के हर बंदा जी, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको सलामत रखें। इस अकीदे की क्या बात, बहुत शुक्रिया जी। मुझको खुदा ने सारे जहानों से चुन लिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक मुर्तजिज़, तुझे खुदा ने सारे जहानों से चुना तो है, लेकिन पूछना ये चाहता हूँ खुदा ने तो चुन लिया लेकिन तूने खुद किया क्या? तो समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू? मसलन सजाद साहब मजलिस के बाद निकले, वो कहे मैंने शबीउल हसन काज़मी को बुला लिया। शबीउल हसन काज़मी अशरे पे रोज़ाना आ रहा है, शबीउल हसन काज़मी रोज़ाना पढ़ रहा है, इब्तिसाम रिज़वी साहब रोज़ाना हिताब कर रहे हैं, इब्तिसाम रिज़वी साहब रोज़ाना आ रहे हैं। बंदे पूछने का हक तो रखते हैं। सजाद साहब आपने बुला लिया, अब उन्हें बुला के पढ़ना आपने तो नहीं, पढ़ना उन्होंने है। सवाल ये पैदा होता है आपने तो बुला लिया
بندہ حقیر شبیل الحسن کاظمی کو اس نے پڑھا کیا؟ میں نے عالم تصور میں دونوں ہاتھ جوڑ کے حسین کے رہوار سے کہا، میں نے کہا میرے مولا کی سواری، ہم تجھے جھکنا، تیرے آگے جھکنا، تیرے آگے جھکنا۔ چلو بندے عقیدے کے پیچھے رہ گئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ میں نے کہا ہم تجھے جھکنا، تیرے آگے جھکنا ثواب سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں، لیکن حسین کا رہوار پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے خدا نے چن تو لیا، تو خود کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ حسین کا رہوار کہتا ہے شبیل الحسن کاظمی میں کام اتنا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کون سا کام؟ حسین کا رہوار کہتا ہے ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر۔ نا 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 نا، کام اگر بڑا ہو تو پھر بولنے میں بخل نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھا کے جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ حسین کا رہوار کہتے ہیں ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، رہتا ہے میرے روب سے منکر کے دل میں ڈر۔ نا 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 نا، جسے حسین کی گھوڑے کی عظمت پسند آئے وہ بندہ بولے حسین کا رہوار کہتا ہے ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، رہتا ہے میرے روب سے منکر کے دل میں ڈر، ہوتا ہے میرا ساتھ میں شبیر کے سفر۔ نا نا نا، میں حسین کے بغیر تو چلتا ہی نہیں، حسین کی مرضی کے بغیر میں چلتا ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا شکریہ۔ حسین کا رہوار کہتا ہے ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، رہتا ہے میرے روب سے منکر کے دل میں ڈر، ہوتا ہے میرا ساتھ میں شبیر کے سفر۔ اپنی بی بی سیدہ فاطمہ کے نام کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، لقب کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ حسین کا رہوار کہتا ہے ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، رہتا ہے میرے روب سے منکر کے دل میں ڈر، ہوتا ہے میرا ساتھ میں شبیر کے سفر، میرا سوار مادر احمد کا ہے پسر۔ لطف آ گیا جناب، کیا کہنے، زندہ باد لکھو ڈیر۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی بڑی مہربانی۔ حسین کا رہوار کہتے ہوتی ہے میری دشمن شبیر پہ نظر، رہتا ہے میرے روب سے منکر کے دل میں ڈر، ہوتا ہے میرا ساتھ میں شبیر کے سفر، میرا سوار مادر احمد کا ہے پسر، میرا سوار مادر احمد کا ہے پسر۔ میں نے کہا حسین کا رہوار تیری عظمت کیا ہے، حسین کا رہوار تیری طاقت کیا ہے، حسین کا رہوار تیری قوت کیا ہے، حسین کا رہوار تیری پاور کیا ہے؟ حسین کا گھوڑا کہتا ہے میرا سوار مادر احمد کا ہے پسر، حسین کا گھوڑا کہتا ہے بے خوف ہوں، عظیم ہوں، اعلیٰ دلیر ہوں۔ نا 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 نا، حسین کے گھوڑے کی عظمت، حسین کا رہوار کہتا ہے بے خوف ہوں، عظیم ہوں، اعلیٰ دلیر ہوں۔ بے دیکھنا میری طرف ہے جی، بے خوف ہوں، عظیم ہوں، اعلیٰ دلیر ہوں، طاقت میں مرتجز ہوں، دو عالم کا شیر ہوں۔ عظمت رہوار حیدر مل کے جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ بے خوف ہوں، عظیم ہوں، اعلیٰ دلیر ہوں۔ جی بڑی مہربانی، مالک سلامت رکھیں، بے شک ایسے ہی ہے۔ بے خوف ہوں، عظیم ہوں، اعلیٰ دلیر ہوں، طاقت میں مرتجز ہوں، دو عالم کا شیر ہوں۔ بڑی مہربانی، حسین کا رہوار اپنی طاقت بتا رہے، حسین کا رہوار کہتے ہیں اپنی عظمت بتا رہے، اپنی طاقت بتا رہے۔ حسین کا گھوڑا کہتے ہیں شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں۔ جسے کبھی کا معنی آتے ہیں یار، جسے پتہ ہے کبھی کہتے کسی ہیں۔ حسین کا رہوار کہتے ہیں شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں۔ شبیر کا، آئیے جی بسم اللہ تشریف لائیے قبلہ۔ شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں۔ حضور حسین کے رہوار کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، حسین کا گھوڑا اپنی شان بیان کر رہے، شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں، ہر منکر اسلام پہ میں تیغ جلی ہوں۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، حسین کے رہوار کی عظمت پہ بولنے والوں کا شکریہ۔ حسین کا رہوار کہتا ہے شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں، ہر منکر اسلام پہ میں تیغ جلی ہوں، اور باغ شجاعت کی میں انمول کلی ہوں، اور باغ شجاعت کی میں انمول کلی ہوں۔ حسین کا رہوار کہتا ہے شبیر کا نوکر ہوں میں، طاقت میں کبھی ہوں، ہر منکر اسلام پہ میں تیغ جلی ہوں، اور باغ شجاعت کی میں انمول کلی ہوں، میں شیر ہوں، شیروں کا میں ہی شیر علی ہوں۔
ओहो, जो बंदा पीछे रह गया उसका अपना मुकद्दर। हुसैन का रहवार कहता है शब्बीर का नौकर हूँ मैं, ताकत में कवि हूँ, हर मुनकर इस्लाम पे मैं तेगे जरी हूँ, और बागे शुजात की मैं अनमोल कली हूँ। मैं शेर हूँ शेरों का मैं ही शेर अली हूँ, मैं शेर हूँ शेरों का मैं ही शेर अली हूँ। जिस बंदे को तारीफ पता है, हुसैन का रहवार कहता है अफजल यूं बड़ा मर्तबा में पाता रहा हूँ, अफजल यूं बड़ा मर्तबा में पाता रहा हूँ। शबीउल हसन काज़मी हुसैन के रहवार की इज्जत पढ़े आप बोलते हैं। इब्तिसाम हैदर रिजवी साहब हुसैन के रहवार की इज्जत पढ़े आप बोलते हैं। किबला हुजूर मैं देखने लगा हूँ हुसैन का घोड़ा अपनी जुबान से अपनी अजमत पढ़ रहे, हुसैन का रहवार अपनी जुबान से अपना हिताब कर रहे, अपना ऑनर बता रहे। जो बंदा अब न बोल सका उसका अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। हुसैन का रहवार कहते अफजल यूं बड़ा मर्तबा में पाता रहा हूँ, मैं चादर ततहीर से जो खाता रहा। ओहो, हाथ उठा के हर बंदा है जी, बड़ी मेहरबानी। मैं चादर ततहीर से, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए, अज़ादारों की जिंदगी दराज फरमाए। मैं चादर ततहीर से जो खाता रहा हूँ। बीबी आपको सलामत रखें। मेरे मौला गवाएं, मैं आगे से खुतबा पढ़ना चाह रहा था लेकिन आपके गिरिये ने मुझे बिल्कुल रोक दिया है। बीबी आपको सलामत रखें। यार कितने दर्द वाले मोमिन बैठे हैं। अच्छा फिर बताऊं जो कैसे खाता रहे। मेरे मौला गवाएं आज तक यहाँ पे खुतबा ख़त्म नहीं किया, इसके मज़ीद बांधे, लेकिन मैं बिल्कुल मसाइब की 2 सतरें पढ़ता हूँ। अज़ादारो 10 मुहर्रम सकीना इसी मुर्तजिज़ से पूछ रही थी बता मेरे बाबा को कहाँ उतारा था। हाय हुसैन, मालिक आपकी खाए कबूल फरमाए। अज़ादारो जब 10 मुहर्रम हुसैन इसकी जीन से उतरे हैं ना, तो किताब वाला लिखता है जुलजना की आंखों से आंसू जारी थे, रो रो के कह रहा था मौला सच्ची बता मेरी गलती से उतरे या अपनी मर्जी से उतरे है। मौला अगर मेरी गलती से उतरे मैं महशर में रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं बतूल को क्या मुंह दिखाऊंगा। फरमाया हुसैन ने मुर्तजिज़ मुझसे इतनी वफा क्यों, तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूँ। मुर्तजिज़ मुझसे इतनी वफा क्यों, रो के कहते मौला जब आपने पहली दफ़ा मुझ पे सवारी की थी ना, तो आपकी माँ मुझे लेके अपने सहन में गई थी। मौला मेरे सामने वो चादर रखी थी जिस चादर को अंबिया मस भी नहीं कर सकते। सदके तेरी गाय पे कुर्बान। मौला जिस चादर को अंबिया मस भी नहीं कर सकते, मुझे उस चादर पे जो खिलाती रही, रो रो के कहती रही मुर्तजिज़ जब मेरा हुसैन तन्हा रह जाए तो उसे छोड़ के ना जाना, ओ मेरा हुसैन बड़ा ज़ख्मी। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। और बताऊं कितना ज़ख्मी था, शहादत आखिरी दिन पढ़ी जाएगी। मैं एक रिवायत का टुकड़ा पढ़ के सलाम करता हूँ। अज़ादारो इतने ज़ख्मी थे इमाम हुसैन कि सैयद साजिदीन फरमाते हैं मैं उस मजलूम का बेटा हूँ जिसे तीर वाले ने तीर मारा, जिसे तलवार वाले ने तलवार मारी, जिसे खंजर वाले ने खंजर मारा, जिसे लाठियों वाले ने लाठियों से मारा। जब कहा ना लाठियों से मारा, एक बंदा मोमिन उठ के खड़ा हुआ, चीख निकली, इमाम के कदमों में गिरा, रो के कहते मौला करबला में लाठियां किसके पास थी। रो के फरमाया 300 मलाउन जुमे की नमाज पढ़ाने आए हुए थे, उन लईनों के पास लाठियां थी, लाठियों से मेरे गरीब बाबा को मारते रहे। फरमाया सिर्फ इतना नहीं, जिसके पास लाठियां भी नहीं थी वो करबला की गरा